Hello and welcome to INA, AI and Analytics Magazine, managed and hosted by the flagship program PGDBA of IIM Calcutta, IIT Kharagpur, and ISI Kolkata, where we explore the cutting edge of technology and the minds shaping our future. Today, we are very much excited and thrilled to have the person behind the CampusX, Mr. Nitish Singh, Thank and you. Thank you. who is redefining the accessibility of the data science knowledge. And so we'll take a nice conversation with him. So we'll start Sure. with that. So as education landscape is full of online resources, but then there is also a significant gap in structured and industry relevant learning. Students like us often struggle with where to start, how to stay consistent, and what truly matters for a data science career. CampusX, under your leadership, it is trying to tackle this chaos with free YouTube content, mentorship, and a clear roadmap. So, Nitish sir, it's a great pleasure first again to interview. Before going further, we and our audience want to know more about you and your journey in your own words. So, can you Hmm. elaborate on your journey? Okay, so first of all, thank you for having me. It's an honor because IIM Calcutta is such a big institution of our country, and getting interviewed by a society from this college, it's a great honor. So first of all, thank you for inviting me. I will tell you about my journey. So before starting, like, can we set certain rules? Yeah. Is it okay if I can speak in Hindi because Yeah, that's yeah, my preferred language? sure. We will transcribe later, so we will then share it with you. So it's fine. Okay, so Yes. मतलब I will basically shuffle Yeah, Hindi yeah, English sure, sure. दोनों It चलेगा. works. Also about that questionnaire that you sent me, so are we going to stick with that, or like are you Yes. going to come up with different questions? No, we will stick with that. You will stick with the same questions now because I have prepared a lot. Okay. I would also say कि आपने जो questions बनाए थे, उन्होंने मेरे को सोचने पे मजबूर किया. I was like कि आपने बोला we'll take an interview, and I was like कि okay fine, I'll do the interview. कोई बड़ी बात नहीं. I've given interviews in the past. But फिर आपने जब मेरे को questionnaire भेजा तो I was like no. I need some time to prepare because ऐसा लगा जैसे आप लोगों ने काफी सोच के बनाया, and if I don't come up with good answers तो फिर justice नहीं होगा. So yeah, kudos for making such great interview questions. Thank you. So yeah, let's start with the first question. I'll tell you about my journey. So just like you guys, I was a student. I was an engineering student, and in the window of 2009 to 13. So during those days, I was doing my engineering in electrical, and over there I completed my second year, and I realized कि मैंने 2 साल कर ली engineering, but अभी तक भी मैं खुद को 50% engineer नहीं बुला सकता because I don't have the practical skills. What I have done till now is I have given a lot of semester papers. वो भी just कैसे भी पास हुए हैं, and I don't even remember कि पिछले semester में कौन से papers थे. So essentially what I was doing was कि जो papers मुझे दिए जा रहे थे मैं बस उनको पास करते जा रहा था विदाउट गेनिंग एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे दिमाग में रेड फ्लैग आया कि दिस कैन नॉट बी इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग शुड बी समथिंग मोर. बचपन से बहुत सुनते आ रहे हैं इंजीनियर, थ्री इडियट्स मूवी देखी है, एंड मैं तो कहीं भी उस पिक्चर के आसपास भी नहीं हूँ. सो ड्यूरिंग दोज डेज कुछ कंपनीज होती थी जो कॉलेजेस विजिट कर करके वर्कशॉप्स वगैरह कराती थी. स्पेशली आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस, बट कुछ DIY किट्स होते हैं जैसे Arduino boards, Raspberry Pi. What you can do is you can make DIY robots using them. Yes. So you can make a line following robot, or you can make a object detector robot. So nothing fancy, बहुत basic है. But for me, that was my first entry into the practical skills of engineering. And so वहाँ पे थोड़ा spark आया, and I got interested in robotics and programming because you have to program these robots using a programming language called C. So वहाँ पे मैंने काफ़ी फिर time spend किया apart from my studies, and within 6 to 8 months I was really good at making such robots. In fact, I made certain robots जो हम जाकर के different IITs में, we used to participate in different competitions. कुछ competitions जीते भी, तो काफ़ी इसमें मज़ा आने लगा. And then someone from my friend group suggested कि why don't you teach how to build such robots.
हमारे जूनियर्स जो आए हैं कॉलेज में, दे डोंट नो how to build such robots. Our teachers, they don't know how to build such robots. So we tried to set up a robotica society in our college. We taught our juniors. The response was very good. Then again, one of my friends suggested ki let's do it on a bigger scale. Why not approach other colleges, other societies? Let's visit different cities. And that's when we kind of floated a company. And there were three partners, me being one of them. And we visited a lot of colleges, and we also conducted workshops, retail workshops in different cities. तो वहाँ पे I got this flavor of education, edtech. Then gradually जैसे जैसे टाइम बीता तो आई रियलाइज्ड कि सिर्फ रोबोटिक्स से काम नहीं चलेगा. देर आर सर्टेन अदर स्किल्स जो बहुत इन डिमांड है. उस टाइम पे सॉफ्टवेयर वॉज गेनिंग पॉपुलैरिटी. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की साइड मूव करते हैं. आई स्टार्टेड टीचिंग वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, थिंग्स लाइक दैट जो इंडस्ट्री में काम आता है. एंड देन ऐसा करते करते अराउंड 2016 2017 I started hearing about machine learning a lot. And I read about it, थोड़ा time spend किया, and it drew my attention. जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी, जिस तरह के applications मैंने बनाए, I thought कि this could be the future. उस टाइम पे उतनी बातचीत नहीं होती थी, but I realized कि this thing has potential. And from then I dedicated a lot of time in machine learning, deep learning, etc. Skills build किए. Eventually 2020 में I started this YouTube channel. वहाँ पर I made around 1,000 videos. उन videos को बनाने के process में बहुत कुछ सीखा. And फिर gradually Campus X भी धीरे धीरे बड़ा होता गया. तो more or less this has been the journey. Unlike other creators जिनसे आपने शायद कभी बात की होगी, मेरी जर्नी में मैंने कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया इंडस्ट्री में. Mostly I have been a teacher. It has been almost 12 years now. I started in 2012 or 2013 when I was a college student. So it has been almost 13 years now. And I think I have taught more than 50,000 students offline or online का तो I don't have a number because you cannot track that. But yeah, मतलब काफ़ी वो होता है ना, 10,000 hours if you spend into something, तो फिर आप You will become an expert on that level. For me, it is teaching not only machine learning but robotics, web development, everything. And now Campus X is what it is right now. Okay, so like you have taught many students and then you have experience also in industry. So when you started this Campus X, what lessons which you have learned before it? So there was some gap which you want to fill, right, between the theory and some real world data science challenges, or maybe when you started with robotics also. So how Yeah. did your Campus X was reflecting those lessons which you wanted, which you learned, and which you, with that gap? How did Campus X help in filling that? सो मेरा जो एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था कॉलेज में आने के बाद कि समहाउ टीचर्स जो पढ़ा रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट व्हेन आई वॉज इन स्कूल. इनफैक्ट आई वॉज अ टॉपर ड्यूरिंग माई बोर्ड एग्जाम, स्कूल टॉपर, एंड आई कंसिस्टेंटली स्कोर्ड गुड मार्क्स इन माई स्कूल डेज. बट व्हेन आई गॉट इनटू द कॉलेज आई रियलाइज्ड ना मुझे टीचर्स का समझ में आ रहा है और ना मुझे पढ़ाई उतनी इंटरेस्टिंग लग रही है. एंड आई स्टार्टेड टू थिंक वाई, ऐसा क्यों हो रहा है. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट. जो स्कूल में थोड़ा कम था, थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता था स्कूल्स में लेक्चर करने में, पीरियड्स अटेंड करने में. कॉलेज में आई फेल्ट देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट. टीचर आ रहा था और लेक्चर डिलीवर कर रहा था, बट फॉर मी इट वॉज नॉट इंस्पायरिंग. सो मैं वापस जाके कभी उसको प्रेफर नहीं कर रहा था. तो दिस वॉज द बिगेस्ट थिंग दैट आई रियलाइज कि टीचिंग में जो आपका पेडागोजी यूज हो रहा है कॉलेज में, देर इज सम प्रॉब्लम विद इट. सो आई डिसाइडेड कि if I'm going to teach students, first of all, I will make sure कि the class should be interesting. So for me, if I'm taking a class, a very important parameter is कि कितने लोग क्लास में घुसे और कितने लोग एंड तक हैं. So let's say if I'm taking an online session and the class starts with 100 people. For me, a very important metric is कि class के end में कितने बचे. Obviously कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, but that number should be very close to 100.
इफ दैट नंबर इज वेरी क्लोज टू 100 इट मीन्स कि मैंने उनका अटेंशन रिटेन किया. फिर ओवर टाइम सिंस बहुत पढ़ाया है मैंने, तो कुछ और चीज़ें डिस्कवर की जो मुझे बहुत हेल्प करती है मेरी टीचिंग पेडागोजी में. वन ऑफ देम इज आंसरिंग द व्हाई. सो बाय व्हाई आई मीन कि हमें जनरली जब चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, तो एज स्टूडेंट्स ऐसे अज्यूम कर लिया जाता है कि इतना ही तुमको जानना ज़रूरी है, इससे दोनों तरफ इट डज नॉट मैटर, तुम क्वेश्चन भी मत पूछो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मैथ्स की क्लास में हो, टीचर हैज रिटन अ फॉर्मूला एंड ही विल से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा, बट वो आपको ये नहीं बता रहा कि रियल लाइफ में वो फॉर्मूला क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. मतलब इट्स वेरी इजी टू रिलेट, राइट? आप सब रिलेट कर पाओगे. हम सब ने, अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सो मेनी थिंग्स वी हैव रेड, डिफरेंशियल इक्वेशंस. जब तक मैंने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ा था, मेरे पास एक क्लियर आंसर नहीं था कि मैं डेली लाइफ में डिफरेंशिएशन कहाँ यूज़ करूँगा या डिफरेंशियल इक्वेशंस कहाँ यूज़ करूँगा. नाउ आई थॉट कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम. हम स्टूडेंट्स को पार्टनर नहीं बना रहे पढ़ाते टाइम, हम उनको बस एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करने की, इतना बता दिया इतना काफ़ी है. सो आई टुक दिस एज अ चैलेंज कि मैं कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, कितना भी बेसिक लेवल पे हो, आई विल फॉलो दिस व्हाई व्हाट हाउ मैकेनिज्म, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि कोई पर्टिकुलर चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है. सो अगर ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे का एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ. और होता क्या है कि दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. अगर आप किसी की स्टोरी से कनेक्ट कर जाते हो ना, तो फिर आप ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करते हो. फॉर रेफरेंस, आप मूवीज में बहुत सारे विलन्स देखोगे, बट अगर आपको उनकी बैक स्टोरी बता दी जाएगी ना, तो आप काइंड ऑफ उनको सपोर्ट करने लगते हो एट अ सबकॉन्शियस लेवल, राइट? तो दिस इज बिकॉज आप एज ह्यूमंस, वाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई फॉलो दिस टीचिंग पेडागोजी. इफ आई एम टीचिंग अ टॉपिक एक्स, आई विल फर्स्ट टेल यू वाई एक्स, then what x, then how x. And over time I realized कि ये most of the students के साथ connect किया. किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, 50 years का बंदा है जो ट्रांजिशन करना चाह रहा है, वो सब इस फिलोसफी से रिलेट करते हैं, इस पेडागोजी से रिलेट करते हैं. और उसकी वजह से आई हैव रियलाइज्ड कि फीडबैक वगैरह मेरा अच्छा रहने लगा. तो दिस वाज द सेकंड थिंग. इसके अलावा एक और चीज़ आई रियलाइज कि बहुत अच्छा टूल है पढ़ाने के टाइम, एंड दैट इज इफ यू टीच समथिंग बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. मतलब आप किसी चीज़ को ऐसे पढ़ाओ कि जैसे आप उसको इन्वेंट कर रहे हो, राइट? तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, रादर देन जस्ट गिविंग यू द आउटकम कि ये फाइनल चीज़ है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है. व्हाट इफ मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से वो जर्नी करा के दिखाऊं जो उस क्रिएटर ने भी फील की होगी. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, बट वो ऐसा नहीं था कि एक दिन उसने बस लिख दिया कहीं पे. ऑब्वियसली उसकी एक जर्नी होगी. तो अगर वो सेम जर्नी मैं अपने स्टूडेंट को भी कराऊंगा, तो नॉट ओनली वो सीखेगा लॉज ऑफ मोशन, बट एट द सेम टाइम देर इज अ गुड चांस कि सिंस उसने भी वो जर्नी की है जो न्यूटन ने की है, उसके अंदर भी वो पोटेंशियल है कि कल को वो कुछ अपने लेवल पे इन्वेंट कर पाए. तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Third thing that I implement a lot is use of examples. I feel कि टीचिंग में सही टाइम पे अगर आप एग्जाम्पल दो, तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग बहुत इंप्रूव कर जाता है. इट्स लाइक वर्किंग विद LLM. आप एक प्रॉम्प्ट देते हो, बट अगर आप उसमें सही एग्जाम्पल्स दे दो, आप खुद देखोगे कि आपके LLM का आउटपुट बहुत, इट्स मच बेटर. इनफैक्ट देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट प्रॉम्प्ट. Yes. It's basically what we give examples and we teach कि LLM सही आउटपुट दे. तो ये 3-4 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ. एंड लास्टली, सिंस वी आर इन टेक्निकल एजुकेशन, तो whenever I teach something, I try to build something around it. तो that also helps because after all it is a skill. आप 1000 वीडियोस देख लो यूट्यूब पे स्विमिंग के बारे में, और विदाउट प्रैक्टिस करे कूद जाओ, आप डूब जाओगे, बिकॉज इट इज अ स्किल. आपका मसल मेमोरी सिंक में होना चाहिए आपके थिंकिंग के. वो तब तक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो सेम इज एप्लीकेबल इन व्हाट वी डू इन डेटा साइंस AI. इट इज अ स्किल एंड you have to practice. So
बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स अराउंड इट, गिविंग रेलिवेंट एग्जांपल्स, ये सब बहुत मैटर करता है. तो ये कुछ सेट ऑफ फिलोसफीज है जो मैंने पिछले 12-13 सालों में रियलाइज की दैट इट इज़ वर्किंग, एंड इनको फिर मैंने अपनी टीचिंग पेडागोजी में इम्प्लीमेंट किया, एंड ओवर टाइम फिर यही हम काइंड ऑफ डिलीवर करने की कोशिश करते हैं कैंपस एक्स में. Okay, sure. Uh, so let me let come to the data science background. Like data science background में problem है कि industry and academia के बीच में there's a clear gap. Because like most of the university they emphasis on like subjects like theory, while companies they want hands-on skills, like they want someone who is good with Python, SQL, and cloud platforms. There's a mismatch between there's a mismatch which leaves the graduates always like unprepared, and also which also makes the employers frustrated. So, in your view, what does the disconnect between the academia and industry lies? And is it outdated syllabus or lack of practical exposure or something deeper? And what actionable steps can educator, a student, and company should take to bridge this gap? Maybe in terms of like in terms of like India, what can these stakeholders can? So academia का अगर हम बात करें ना, तो किसी भी कंट्री में academics जो भी होती हैं, कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उनका सेटअप मोस्टली 2 रीजन से होता है. वन इज टू सेटअप अ कल्चर ऑफ रिसर्च, मतलब कि वहाँ पे जेन्युइन रिसर्चर्स आएंगे और वहाँ पे रिसर्च करेंगे, लाइक कुछ चीज़ें आगे बढ़ के खोजने की कोशिश करेंगे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में IISc बहुत पहले से बहुत काम चल रहा है वहाँ पे, और इंडिया को कंट्री लेवल पे बहुत चीज़ों में बेनिफिट्स दिए हैं. पूरा का पूरा आप कह सकते हो कि इंडिया का जो रॉकेट साइंस है वो एक तरीके से उस कल्चर, उस कॉलेज की तरफ से आया. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो काम होता है एकेडमिक्स का वो होता है रिसर्च. बहुत तरीके से वो हेल्प करता है कंपनीज को भी. अब फॉर एग्जांपल आप ले लो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर. आज का पूरा AI का लैंडस्केप इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, एंड इट हैज कम फ्रॉम अ रिसर्चर. गूगल ब्रेन की तरफ से आया, बट इट्स अ रिसर्च लैब, राइट. तो एकेडमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिसर्च, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज इम्पार्टिंग एजुकेशन. कि आप और लोगों को लाओ और फिर उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ, ताकि वो भी रिसर्च कर पाए, एंड एट द सेम टाइम अगर कंपनीज को चाहिए है जेन्युइन टैलेंट, अच्छा टैलेंट, तो वो टैलेंट आप उनको प्रोवाइड कर पाओ. अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है कि इंडस्ट्री एकेडमिक्स साथ में काम करेगी, एकेडमिक्स को फंड करेगा इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को अगर टैलेंट की ज़रूरत है तो वो एकेडमिक्स ला के देगी. अगर कहीं पे फंस गया है इंडस्ट्री तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके निकाला जाएगा रिसर्च में. तो थियोरेटिकली दिस आइडिया इज वेरी वेरी गुड, राइट, एंड दैट इज व्हाई इट इज वर्किंग फॉर सो लॉन्ग. द ओनली प्रॉब्लम इज अगर हम इसको थोड़ा नैरो डाउन करें इस पूरे डिस्कशन को टू कंप्यूटर साइंस, बिकॉज वी आर मोस्टली डिस्कसिंग अराउंड AI एंड ऑल. तो अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ आओ ना, तो द प्रॉब्लम इज कि कंप्यूटर साइंस में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है और जिस रेट से आगे बढ़ रही है कंपनीज और इंडस्ट्री ऑन द होल, वो बहुत फास्ट है. मतलब एवरी नेक्स्ट ईयर यू विल सी कि कुछ कंप्लीटली नया आ जाता है और वो इंडस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर देता है. अगर आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करो तो हम शायद मूर्स लॉ पे जा सकते हैं. मूर्स लॉ अगर आपको बताओ कि एवरी सेकेंड ईयर the number of transistors on a chip will double, something like that. Yes. Because of that particular thing, हार्डवेयर बहुत बढ़िया हो रहा है, सॉफ्टवेयर उसके साथ इम्प्रूव कर रहा है, तो हर अगले साल यू सीइंग अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट. अब प्रॉब्लम क्या है कि ये इतना फास्ट पेस है कि अकेडमिक्स को कोप अप करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल जेनरेटिव AI पिछले 2 सालों में मार्केट में आया और अब छा गया है. हर कोई उसके बारे में बात कर रहा है. इनफैक्ट आज के इंटरव्यू में आप मेरे से शायद 3-4 क्वेश्चन उसके अराउंड डेफिनेटली पूछोगे, बिकॉज इट इज द बज ऑफ द टाउन. नाउ अभी आप जाके देखो कि कितने इंडियन कॉलेजेस के करिकुलम में जेन AI होगा. नहीं है. नहीं. Because हम एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं. AICT इज द काउंसिल जो इंजीनियरिंग टेक्निकल एजुकेशन हैंडल कर रही है. अभी वो असेस करेंगे कि जेन AI कितना अच्छा है, फिर वो पॉलिसी चेंजेस करेंगे, करिकुलम अपडेट्स होंगे, वो करिकुलम अपडेट्स नीचे पूरे प्रोपेल करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस में. तो हो सकता है 2 साल बाद करिकुलम में जेन AI आ जाए. अब ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि करिकुलम में हमें चेंजेस किए, पढ़ाएगा कौन? अब यू नीड टीचर्स. नाउ इमेजिन सम कॉलेज जो इंडिया के Tier 3 सिटी में,
वहाँ पे तो आपका कोई बहुत टैलेंटेड जेन एआई वाला बंदा जाना नहीं चाहेगा. A Yes. very talented person will always prefer working in a metro city, right? तो you can see problem implementation का है, execution का है. Industry बहुत तेजी से evolve कर रही है, but at the same time हमारा जो academics है वो kind of इस चीज़ में थोड़ा पीछे रह रहा है, especially जो imparting education वाला part है. और उसकी वजह से हमें एक lagging output दिखाई दे रहा है कि हमारे graduates जो निकल रहे हैं वो kind of थोड़ा stale technology पढ़ के निकल रहे हैं. जबकि इंडस्ट्री में डिमांड किसी और चीज़ का है. तो दिस इज द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से कि सिंक में ग्रोथ नहीं है. अगर आप बाकी इंडस्ट्रीज देखो तो फिर भी थोड़ा सिंक में ग्रोथ है. जैसे अगर आप एमबीए ले लो तो एमबीए में ऐसा कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं होता है हर अगले साल. तो मोस्टली वही प्रिंसिपल्स वही टूल्स यूज हो रहे हैं सालों से. आपके एमबीए कॉलेजेस वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं. तो वहाँ पे आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी कि यार कैसे बच्चे आ रहे हैं, इनको ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता. वहाँ पे सब कुछ सिंक में. इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज ऑफ दिस मूर्स लॉ वाला इफेक्ट ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री फट पड़ा है. अकेडमिक्स पूरे टाइम कैचअप गेम खेल रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट नाउ. Okay. What was the second part of the question? Actionable recommendations which you can. Recommend. Okay, हाँ तो आपने जो मेरे को क्वेश्चन भेजा था उसमें आपने तीन लोगों के बारे में पूछा था कि एजुकेटर्स का क्या यहाँ पे Stakeholders है. Educators, students and companies. Educators, students and I'll companies. just refer certain points. मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है. Yes. या सो अगर हम एजुकेटर्स की बात करें तो एजुकेटर्स मैं यहाँ पे दो ब्रैकेट्स में डाल रहा हूँ. वन इज द पॉलिसी मेकर्स जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं. इट कुड बी द एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी मिनिस्ट्री, एआईसीटी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको मैं इस ब्रैकेट में रख रहा हूँ. सो मेरे को लगता है कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं इनका रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी प्रोएक्टिव. मतलब अभी तक इट हैज बीन अ रिएक्टिव काइंड ऑफ रिस्पॉन्स कि कुछ हुआ, उसको देखा, काफी न्यूज उठी तो फिर रिस्पॉन्ड किया. आई थिंक देयर शुड बी अ प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, राइट? कि मेरे पास भी उतने ही काबिल लोग काम कर रहे हैं मेरी मिनिस्ट्री में जो असेस कर सकते हैं कि 2 साल बाद क्या होगा और वो प्रोएक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड करे. सो इफ दे कैन सी कि करिकुलम में जेन एआई ऐड करना है तो इट हैज टू बी फास्ट. हटाना है, इट हैज टू बी फास्ट. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, करिकुलम में ऐड कर दिया, हाउ वुड यू प्रोवाइड टीचर्स? टीचर्स नहीं होंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. तो यहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा सा अब जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाने का उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है. पोस्ट कोविड सबको समझ में आ गया है कि एजुकेशन कैन ईजिली बी कंडक्टेड ऑनलाइन, राइट? स्कूल्स ऑपरेट करके देख लिए, कॉलेज ऑपरेट करके देख लिए. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि रादर देन आप हर जगह जाकर के कॉलेजेस खोलो और क्वालिटी इंश्योर ना करो, उसके बदले आप स्केलेबल तरीके अपनाओ. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट एक ऑनलाइन कॉलेज खोले जहाँ पे सिर्फ बेस्ट ऑफ द टैलेंट पढ़ाए, बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज यूज हो, ऑनलाइन एग्जाम्स हो, ऑनलाइन असेसमेंट हो. जेन एआई से सब कुछ पॉसिबल है. मतलब आई मीन व्हाई नॉट एन ईआईआईटी और ईआईआईएम? मतलब इट्स कंप्लीटली पॉसिबल, राइट? सिर्फ आईआईटी दिस सिटी के बदले इफ दे कैन ओपन अ ऑनलाइन आईआईटी तो स्केल का प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है, जो नॉर्मल ऑफलाइन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे हर इंडिया के हर सिटी, हर गांव में टीचर पहुंचाना है. जस्ट टेक अ पूल ऑफ टीचर्स जो बहुत अच्छे हैं, अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यू कैन ओपन अप डिफरेंट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज. मतलब दैट कुड बी अ सोल्यूशन. एंड थर्डली, आई फील जो टीचर्स की हायरिंग होती है अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस, आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा ना और बेटर फिल्टरेशन होना चाहिए. अभी तक आई फील कि टीचर्स की हायरिंग जेन्युइनली जो होती है, मोस्टली दे क्रैक सर्टेन एग्जाम्स एंड उनका रिसर्च प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है इसके बेसिस पे होती है. बट वो रिसर्च प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है वो हेल्प करता है कि वो कितना अच्छा रिसर्च करेगा. दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ अकेडमिक्स. सेकेंड कंपोनेंट इज इम्पार्टिंग एजुकेशन. आपको जो आता है आप बच्चों को सिखा पा रहे हो कि नहीं. तो मेरे को लगता है थोड़ा सा आपका हायरिंग इस चीज़ पे भी होना चाहिए कि वो कितना अच्छा पढ़ा पा रहा है. सो वो कंपोनेंट मेरे को लगता है अभी मिसिंग है. जो भी हायरिंग होती है वो कभी भी ऐसे नहीं होती कि आप पढ़ा के दिखाओ बच्चों को आप कैसा पढ़ाते हो, या फीडबैक मैकेनिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है इंडिया में. मतलब मेरे को नहीं याद है मैंने कभी अपने टीचर के बारे में कोई फीडबैक लिखा हो, क्योंकि वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करता. सो आई थिंक पॉलिसी मेकर की साइड से ये कुछ इश्यूज है जो मेरे को लगता है किए जा सकते हैं. सेकेंड, एजुकेटर में मैं ला रहा हूँ टीचर्स को,
बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर द लास्ट रूट नोड जहाँ से एजुकेशन इम्पार्ट होता है बच्चों की तरफ. तो यहाँ पे तो मुझे बहुत शिकायतें हैं. हम टीचर्स थोड़े से मतलब पीछे हैं इस बात में, और दैट इज़ वाई थोड़ा सा हमारे ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गिरती है कि अभी तक चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं. व्हाट आई फील इज़ कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी रहती है टीचर्स में. वंस दे क्रैक द जॉब दे फील कि ओके नाउ वी हैव अ स्टेबल जॉब. तो वो डे टू डे लेवल पे जो फाइट करने का एटीट्यूड है वो थोड़ा कम रहता है टीचर्स में. आई फील थोड़ा सा बस ले लिया लेक्चर. मेरे को लगता है कि यू शुड बी मोर प्रिपेयर्ड. आप अगर एक क्लास लेने आ रहे हो तो आप थोड़ा एनर्जी लेके आओ, थोड़ा प्रिपेयर करके आओ और इंटरेस्टिंग बनाओ उसको. राइट आप ऐसे एग्जाम्पल्स दो जो बच्चे रिलेट कर पाए. सेकेंड, देर इज़ अ कॉन्स्टेंट नीड ऑफ अपस्किलिंग. आप बहुत बढ़िया रिसर्चर हो, आपके नाम पे बहुत पेपर्स हैं, बट अब कुछ नया आ गया है मार्केट में और आपके स्टूडेंट्स को सिखाना है. तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार दैट इज़ नॉट माई रोल. दैट इज़ योर रोल. आपको थोड़ा सा अपना एक्सपर्टीज स्ट्रेच करना पड़ेगा. कुछ चीज़ें आपको भी सीखनी पड़ेंगी और वो आके आपको क्लास में डिलीवर करना पड़ेगा. तो आई फील थोड़ा सा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टीचर्स का. और या मतलब मोस्टली इतना भी होने से मेरे को लगता है कि इट विल बी अ ग्रेट हेल्प. स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स का देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अराउंड देयर कॉलेज. आई फील कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कुछ सीख रहे हो तो आप सिर्फ इसलिए मत सीखो कि मुझे जॉब लेके निकलना है. यू हैव अ ड्यूटी टूवर्ड्स योर कॉलेज. आप इतना मेक श्योर करके जाओ कि आप अपने जूनियर्स को बता के जाओ. या फिर आप कॉलेज से निकल गए, जॉब कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन आप वापस भेजो अपने कॉलेज में थ्रू सोसाइटीज, थ्रू कॉन्टैक्ट्स. आई फील दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कैसा रहता है कि मोस्टली मैंने जितना देखा है स्टूडेंट्स वंस दे आर आउट ऑफ द कॉलेज दे आर लाइक ठीक है बला टेली, नाउ आई विल फोकस ऑन माई करियर, आई विल ग्रो एंड दैट्स इट. आइसोलेशन में ग्रो करने का कॉन्सेप्ट. आई फील आपको पब्लिकली लर्न करना चाहिए. जो सीख रहे हो सामने वाले को सिखाओ, आपको भी फायदा होगा. एंड लास्टली इन टर्म्स ऑफ कंपनीज आई फील ये जो बड़ी कंपनीज हैं दे ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं तो बहुत ब्लंटली बोलता हूँ कि आप लोगों का CSR कैंपेन्स होते हैं, उसमें यार एक सिंपल सी चीज़ ऐड कर दो कि हर कंपनी एक कॉलेज को अडॉप्ट कर ले बस. मतलब अडॉप्ट करने का मतलब है कि वहाँ पे आप एक छोटा सा रिसर्च लैब ओपन कर दो जहाँ पे यू जस्ट मेक श्योर कि क्वार्टर में एक बंदा आपका जो बहुत सही बंदा है वो जा करके लेक्चर्स ले ले, थोड़ा सा इंडस्ट्री कनेक्ट हो जाए. आप वहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, लैब सेटअप एक्सेट्रा. और पॉसिबल गो एंड कंडक्ट अ प्लेसमेंट ड्राइव. मतलब एक कॉलेज को आप अगर आप एंड टू एंड टेकअप कर लो और यू मेक श्योर कि यहाँ पे मैं आई मेक श्योर कि एक कल्चर होगा चीज़ों को सीखने का, तो दैट कैन बी ग्रेट. एंड बहुत सारी कंपनीज करती भी हैं. मैं दिल्ली NCR साइड में रहता हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज के साथ टाई अप है और रिसर्च लैब सेटअप की गई हैं. एंड देर इज दिस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कंपनी का कोई बंदा आके आपको बता रहा है कि हम डे टू डे बेसिस पे ये कर रहे हैं, नॉट ओनली यू विल गेट इंस्पायर्ड बट आपको एक पाथ दिखाई देता है एज अ स्टूडेंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आई फील ये सारे चेंजेस करने से we might be in a better place. But again, totally my opinion. People can disagree. Your answer was like very perfect. It covers most of the aspects and it was like very detailed. So moving on to the next question. So CampusX offers like free YouTube content alongside their programs. So how do you design this dual mode to cater to the diverse learners without diluting the quality? And what is the secret that is keeping your free content as rigorous as the paid courses? ओके सो आई टेल यू सिंस अब मैंने बहुत काम कर लिया एडटेक में और भी बहुत सारी कंपनीज को देखा है ग्रो करते हुए, फेल करते हुए. तो एक चीज़ जो मेरे को समझ में आई है एडटेक के बारे में एज एन इंडस्ट्री कि एडटेक में एक ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है बिटवीन एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. बाय दिस आई मीन कि एज एन एडटेक कंपनी आपके पास एक चॉइस रहता है कि या तो आप बहुत एक्सेसिबल प्रोडक्ट बना सकते हो, मतलब सस्ता प्रोडक्ट बहुत सारे बच्चे उसको यूज़ कर सकते हैं, वर्सेस आप महंगा प्रोडक्ट बना के अपनी कंपनी को ग्रो करवा सकते हो. सो एक्सेसिबिलिटी फॉर द स्टूडेंट, सस्टेनेबिलिटी फॉर द कंपनी, इसके बीच में ही आप एग्जिस्ट करते हो. राइट अगर आप बहुत जाओगे एक्सेसिबिलिटी वाली साइड
तो मतलब आप बहुत सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, आपकी कंपनी मर जाएगी। और अगर आप बहुत सस्टेनेबिलिटी वाली साइड जाते हो, बहुत महंगा प्रोडक्ट बेचोगे, बच्चों तक पहुंचेगा नहीं, वहां भी आपकी कंपनी मर जाएगी। बेसिकली आपको कहीं पे बीच में एग्जिस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत एक्सेसिबिलिटी वाली साइड एग्जिस्ट करता है खान अकेडमी। अगर आपको पता होगा, Yes, खान yes. अकेडमी के सारे प्रोडक्ट्स फ्री हैं हाँ, और वो मोस्टली डोनेशंस और बड़ी कंपनी से उनको पैसे मिलते हैं, तो दे एग्जिस्ट। और मेरे को लगता है कि ठीक ऑपोजिट स्पेक्ट्रम पे सस्टेनेबिलिटी वाली साइड एग्जिस्ट करता है बायजूस जैसी कंपनी, जहाँ पे दे चार्ज फॉर एवरीथिंग, yes. राइट। तो मेरा जो पर्सनल बिलीफ है, मैं थोड़ा एक्सेसिबिलिटी वाली साइड रहना चाहता हूँ, और ये शुरू से रहा है। सो बाय दैट आई मीन कि जब तक मेरे से हो सकेगा, मैं फ्री में आपको चीज़ें पढ़ा दूंगा, और जहाँ भी मुझे लगेगा कि मेरी कंपनी की सस्टेनेबिलिटी एज एट स्टेक, वहाँ पे आई टेक सर्टेन बिजनेस डिसीजंस एंड आई विल ऑफर सर्टेन थिंग्स जो पेड होंगी, बट एट द सेम टाइम वो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल भी होंगी। सो मेरा फिलॉसफी सिंपल रहता है कि मैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने जाता हूँ, तो माई फिलॉसफी इज कि उसका 75% मैं आपको फ्री में सिखा दूंगा, विच मीन्स कि अगर आपको 100 के स्केल पे पहुंच के आप एक्सपर्ट होते हो किसी टॉपिक में, तो मेरा फ्री कंटेंट देख के आप 75 तक पहुंच जाओगे। रेस्ट जो 25 वाला जर्नी है, जो कि खुद में बहुत लंबा जर्नी होता है, मतलब आप 90 तक पहुंच सकते हो, बट 90 to 95 इज अ डिफरेंट गेम। Real journey. तो अगर आप 75 से 100 की तरफ जाना चाहते हो, तो वहां पर फिर आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हो। फॉर रेफरेंस, हमारा एक प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग का, 100 डेज ऑफ Yes. मशीन लर्निंग बोल के। तो उसमें अराउंड 100 आवर्स का कंटेंट है, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि वो पढ़ के आप 80% लेवल के मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। बट 100 तक जाने के लिए हमारा एक पेड कोर्स है, जहाँ पे हमने 500 आवर्स का कंटेंट डाला है, DSMP बोल के। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि 100 आवर्स में आप एक लेवल तक पहुंच रहे हो, और फिर 500 आवर्स स्पेंड करके आप 100% तक पहुंच रहे हो। तो दैट इज द मेन आइडिया कि कोई भी टॉपिक है, 75% तक मैं आपको पहुंचा दूंगा। उसके बाद आपको आगे जाना है नहीं जाना है, दैट इज योर डिसीजन। अगर जाना है तो आप हमारे पेड कोर्सेज ले सकते हो। और मेरे को लगता है फिलोसफिकली स्पीकिंग भी अच्छा है, मैं पहले स्टूडेंट को फ्लेवर दे देता हूँ कि हम ऐसा पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप हमारा पेड कोर्स ले लेते हो, तो उसमें चीट होने का भी कोई ज़्यादा सीन नहीं है। तो जनरली यही है हमारा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं मॉडल कैंपस एक्स पे। Sure, sure. And it's working very fine. The playlist which you just said, 100 SML, it's very famous among us. हाँ, इट इज़ अ फेमस प्लेलिस्ट, यस। Yes, sure. So, but there is this data science evolving day and night. One day you wake up and there is a new model there. So, and it's driven by tools like GenAI. Means even professionals who are working in companies, they also struggle to stay updated. We had some sessions and with people who are working in industry, and they're saying new things are coming. One model from Google, then from Microsoft, and this and that. So with GenAI is reshaping the totally data workflows for students, especially, and then also for professionals who are navigating this change. If not very specific, like, but what habits or maybe a general framework can you recommend to build for a self-driven but also future-proof learning mindset? Like, maybe should learners prioritize on project-based experimentation? They should take new projects based on something which is new coming in the market, or maybe they follow some specific thought leaders, or even audit their skills quarterly, like if I know this or not. Like, what should they do in this evolving skill sets? सो जेन एआई नया है, और ऑनेस्टली इस पॉइंट पे किसी को भी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कैसे इवॉल्व करेगा। इस पॉइंट तक भी इट हैज़ बीन वेरी फास्ट, मतलब बहुत कम टाइम मिला एडजस्ट होने को, सभी को, स्टूडेंट्स को भी, इंडस्ट्री लीडर्स को भी। तो मोस्टली हम सबके जो भी ओपिनियंस हैं वो दे आर एज गुड एज गेसेस इस पॉइंट पे। बट इफ़ यू आस्क मी, तो डेफिनेटली डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने का जो तरीका है वो पिछले 4-5 सालों में बदल गया है। पहले एक टिपिकल वर्कफ्लो कुछ ऐसा होता था कि आप डेटा को लेके आते थे, प्री प्रोसेसिंग करते थे, एनालिसिस करते थे, ईडीए परफॉर्म करते थे, मॉडल्स बिल्ड करते थे, 4-5 मॉडल्स को कंपेयर करते थे, फिर जो बेस्ट परफॉर्मिंग मॉडल है उसको डिप्लॉय करते थे, और ये सब कुछ आप खुद से करते थे। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा टूल नहीं था जो आपको हेल्प करेगा, तो बहुत सारा मैनुअल वर्क था। अभी जेन एआई के आने के बाद से क्या हुआ है कि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं। मतलब ऑटोमेटेड प्री प्रोसेसिंग हो जाता है, आपका डेटा एक लेवल पे क्लीन हो जाता है, इनसाइट्स अपने आप जनरेट हो जाते हैं, मॉडल्स अपने आप
50-60 मॉडल्स जितने आप चाहो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनके ऊपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड आउट द बेस्ट मॉडल। और ये सारा कोड भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा कोड टूल्स हैं जो जनरेट करके दे रहे हैं। तो क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाउ लेवल पे चीज़ें फिगर आउट कर दी जा रही हैं आपके लिए। मतलब आपको कोड तक नहीं लिखना है, आपको खुद से ये डिसीजन नहीं लेना है कि कौन से मॉडल्स को आप कंपेयर करना चाहते हो। तो काफ़ी सारा जो हैवी लिफ्टिंग है वो ये जेन एआई टूल्स कर दे रहे हैं। और ये आज का सिनेरियो है, तो 5 साल बाद तो देयर इज अ गुड चांस कि और ज़्यादा इसमें ऑटोमेशन आ जाएगा। अब इस पूरी चीज़ में बस प्रॉब्लम ये है कि आप कंट्रोल छोड़ रहे हो और ये टूल्स कंट्रोल ले रहे हैं। तो आप एक सेंसिटिव इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, राइट? और कंट्रोल में आप रहोगे कैसे? आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। फॉर रेफरेंस हम कोड जनरेट कर देते हैं। मैंने टूल को बोला कि मुझे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का कोड जनरेट करके दो, उसने करके दे दिया, राइट? बट अगर मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं है कि ये कोड काम कैसे करता है या इसमें कुछ एरर है और मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ और मैं चीज़ों को कर दूँ बस और प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकते हो कंपनी का। सो इस पूरे जेन ए आई डे एंड एज में जहाँ पे ऑटोमेशन विल बिकम अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, सो दैट जो भी हो रहा है हाउ लेवल पे ये ए आई टूल्स आपको काम करके दे रहे हैं, आप असेस कर पाओ और अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक कर पाओ। तो मेरा तो सबसे पहले सजेशन यही है कि जो फंडामेंटल स्किल्स हैं डेटा साइंस में, एआई में, मैथ्स, एल्गोरिदम का इंटरनल वर्किंग और इसके अलावा डोमेन नॉलेज एक्सेट्रा जो चाहिए होता है कोई भी प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने के लिए, इन सारी चीज़ों से यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट दोज सो दैट यू कैन वर्क वेल विथ सच एआई टूल्स। तो मेरा तो यही सजेशन है कि फंडामेंटल्स पे फोकस करो। Okay, so as it was like in the line of our next question, like, you know, we are in a very rush to master many tools, especially students, and a lot of to master the coding. So many learners, students, they are overlooking the mathematical foundations of data science, like statistics, linear algebra. Right now, we are learning that everything has pure maths only. Coding is just the end point of it. So, you know, Right. because they are just underpinning all the algorithms and all the critical thinking. So in your view, as you told, it's very essential for students to prioritize learning the math and the theory, you know, behind all this data science, not just simply like Python, but like, so can you share some example in which some where a lack of this foundation knowledge, it can hinder someone's problem solving? Maybe they're finding it in the starting, yes, it's doing fine, we are learning something. And also, like, I wanted to ask this question very specific to CampusX. Like, how does CampusX is coming there and solving this problem? Like, these fundamentals are not sidelined. How does CampusX? Because this is a difficult thing to go both these things together. So both these questions, like, an example and also how CampusX is doing it. Okay, so first of all, if someone asks me this question कि क्या डेटा साइंस एआई पढ़ने के लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है, तो मतलब द आंसर इज एब्सोल्यूट यस। मतलब अगर आप मैथ्स पढ़े बिना किसी तरीके से पढ़ भी लो एल्गोरिदम्स को और थोड़ा कोड चला के आप कुछ कुछ आउटपुट निकाल भी लो, तो ये सब काम करता है बस बेसिक प्रोजेक्ट्स में। आप टाइटैनिक वाला डेटा सेट उठा के उस पर एक्यूरेसी ले आए, वो ठीक है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, बट जैसे ही आप थोड़े भी सीरियस प्रोजेक्ट्स उठाओगे, यू वुड रियलाइज कि कितना मुश्किल होता है एक एल्गोरिदम का टेस्ट डेटा पे एक्यूरेसी 80 से 85% लाना। जस्ट 5% का इम्प्रूवमेंट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड। मतलब when I was learning deep learning, I still remember those days when I used to take up certain projects. I still remember I was building a emotion detector. So there was this data set on Kaggle जहाँ पे आपके पास images होते हैं जहाँ पे अलग अलग emotions हैं basically pictures में, anger, happiness, sadness, and you have to build a convolutional neural network to identify those emotions. And these were like my early days. मैं just सीखना start किया था, and I trained a CNN on this particular data set, and theoretically मुझे आता था, but जब मैंने practically कोड को रन किया, I saw कि epoch बढ़ता जा रहा है, but जो आपका टेस्ट accuracy है, टेस्ट स्कोर है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ एफर्ट, मेरे को वापस जाके बहुत पढ़ना पड़ा मैथ्स टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड ग्रेडियंट्स,
हाउ ग्रेडियंट्स आर अपडेटेड, बैक प्रोपगेशन कैसे होता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वैनिशिंग ग्रेडियंट, क्यों ग्रेडियंट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजर्स, ये सब जा करके बहुत मैथमेटिकल लेवल पे पढ़ना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि कैसे मैं सही चेंजेस कर सकता हूँ, क्या एक्टिवेशन फंक्शंस यूज कर सकता हूँ जिससे आप अपना जो मॉडल का एक्यूरेसी वो आप इम्प्रूव कर पाओ. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इस बात को पता करने के लिए कि मैथ्स ज़रूरी है. आप थोड़ा भी इंटरमीडिएट लेवल प्रोजेक्ट उठाओ और वहाँ पे बस आप थोड़ा सा कोशिश करो अपने मॉडल का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने को, एंड यू वुड सून रियलाइज कि आपने जो भी सरफेस लेवल पढ़ाई की है ना, इट विल टेक यू टू 80%, नॉट फर्दर दैन दैट. 80 से 85, 85 से 90 जाने में it would take months from your side. So it is super important. Regarding the second part of the question, at Campus X, what we do is, first of all, we are very rigorous in terms of mathematics. अगर आपने lectures देखे होंगे तो आपने notice किया होगा कि I don't care about the duration of my videos, like in comparison to other YouTube channels where people teach the same concept in like 15 minutes. I spend around 1 hour for the same topic. Mostly मेरे लिए नुकसान ही रहता है because YouTube then doesn't promote the video because it's very long. But I always make sure कि अगर एक कोई particular topic है तो मैं उसको in depth ले जा करके break down करूँ in terms of the mathematical formulation. Certain times वही first principle approach से I derive the entire formulation, जैसे कि आपको ये feel हो कि मैंने first time इसको invent किया है. तो वो टीचिंग पेडोलॉजी हम हमेशा यूज़ करते हैं एट कैंपस एक्स, एंड दैट इज़ वाई हमारा जो डेटा साइंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स भी है, वो 500 आवर्स का है और वहाँ पे हमने सिर्फ मशीन लर्निंग पढ़ाया है, नॉट इवन डीप लर्निंग. सो यू कैन जस्ट इमेजिन 500 आवर्स ऑफ कंटेंट जस्ट अराउंड मशीन लर्निंग. तो ऑब्वियसली वी डाइव डीप इन द मैथ्स पार्ट. Okay. So, like, if you know about this particular question, like, what's your take on more structured programs like this PGDBA, for which we are students, and these are the former credentials. But nowadays, with all of these things like doing projects by yourself, learning from here and there, do you think these former credentials still are very relevant for data careers, or like a portfolio in some projects can replace them? What's your take on this? सो आई फील कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और दोनों को एग्जिस्ट करेंगी. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीजीडीबीए जो आपका कोर्स है वो कल को बंद हो जाएगा और कंपनीज जा करके naukri.com से ही हायर करेंगी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जैसे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं. पीजीडीबीए जैसे प्रोग्राम्स दो रीजन से एग्जिस्ट करते हैं. फर्स्ट कि बच्चों को पढ़ाना है एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो अभी इंडस्ट्री में बहुत डिमांड में है, बट एट द सेम टाइम एक सेकंड पर्पस भी है, कंपनीज को रेलेवेंट टैलेंट प्रोवाइड करना. राइट अगर पीजीडीबीए का प्रोग्राम स्टैब्लिश हुआ है तो कंपनीज को ये बात पता है कि IIM कैलकाटा में एक प्रोग्राम चल रहा है और मुझे कभी भी अगर अच्छा टैलेंट उठाना है तो आई कैन गो देयर एंड आई कैन हायर समवन. एंड सिंस इट्स IIM कैलकाटा, IIT खड़गपुर एंड ISI कैलकाटा का प्रोग्राम, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ गारंटी मुझे मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द टैलेंट. राइट तो एज अ कंपनी मुझे दो फायदे मिल रहे हैं. पहला, मुझे घूमना नहीं पड़ रहा टैलेंट हायर करने के लिए. सेकंड, एक सर्टेन लेवल ऑफ गारंटी है कि बच्चे इतने अच्छे तो होंगे. राइट तो दैट इज वाई आपका प्रोग्राम विल ऑलवेज एग्जिस्ट और यहाँ से बच्चों को हायर किया जाएगा. बट फिर प्रॉब्लम्स भी हैं. इफ आई एम अ कंपनी और मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए हैं, एम्प्लॉयज चाहिए हैं, तो मैं आपके कॉलेज में आया, मैंने प्लेसमेंट कराई. द प्रॉब्लम इज कि अब बच्चा अगले साल ज्वाइन करेगा. व्हाट इफ देयर इज एन एड हॉक रिक्वायरमेंट, मेरे को नेक्स्ट मंथ चाहिए. Yes. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू अ प्लेटफॉर्म लाइक naukri.com. अब naukri.com में प्रॉब्लम क्या है कि आपका बहुत बड़ा पूल है. लाइक मैं अगर एक जॉब एप्लीकेशन डालूंगा तो 10,000 बच्चे आ जाएंगे एंड देयर इज नो गारंटी कि मिनिमम लेवल ऑफ टैलेंट होगा उसमें. कितना भी वेरिएंस हो सकता है, बहुत खराब से बहुत अच्छा टैलेंट एग्जिस्ट कर सकता है. तो वहाँ पे अब मैं कैसे फिगर आउट करूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टैलेंट. तो फिर वहाँ पे पोर्टफोलियो कम्स, और जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है वो आता है सरफेस पे, उनकी हायरिंग होती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये दोनों चीज़ें हैं. अगर आप प्लान्ड हायरिंग कर रहे हो तो पीजीडीबीए जैसे प्रोग्राम्स विल एग्जिस्ट एंड हेल्प. बट अगर आप एडहॉक हायरिंग कर रहे हो तो यू विल ऑलवेज गो टू द जनरल पूल ऑफ स्टूडेंट्स और वहाँ से आप पिक करोगे. तो बोथ विल को एग्जिस्ट बिकॉज ये दो अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं. दैट्स माई टेक. Yes, that's very nice.
सर आप पहले ही बता रहा था मतलब आजकल लाइक एवरीवन कैन कोड इजीली विद द लाइक चार्ट जीपीटी और एलएलएम टूल्स सो प्रॉब्लम क्या होता है आपने पहले स्ट्रेस किया था फाउंडेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट बट देयर इज वन मोर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज दिस अप्लाइड प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब when you are learning something like how do you apply your skills to solve the problem so how can a student can learn more about this applied problem skills in this AI driven इसमें आई वुड एक्चुअली सजेस्ट कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा AI टूल्स पे रिलायंस डेवलप ना करें. ये एक प्रॉब्लम है. मतलब इमेजिन अ वेरी स्मॉल किड, लेट्स से समवन हु इज इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, और आप उसको मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर दे दो. वो सॉल्व तो कर दे रहा है ना मैथ्स की प्रॉब्लम, आपको आंसर निकाल के तो दे ही दे रहा है. इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इवन दो करंटली वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दे रहा है, बट उसको जो फंडामेंटल मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए जो उसको फ्यूचर में हेल्प करेगी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वो डेवलप नहीं कर पाया बिकॉज उस गलत एज में उसका रिलायंस बहुत ज्यादा हो गया एक टूल के ऊपर. अभी सेम सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है कि जेन एआई टूल्स के आने के बाद से फॉर एग्जांपल कोडिंग इज सो इजी. yes कोड डिबगिंग इज सो इजी. आई कैन जस्ट पेस्ट माय कोड, हाँ, माय paste एरर, एंड वो डायरेक्टली मुझे बता देगा कि गलती क्या है. गलती आई स्टिल रिमेंबर माय कॉलेज डेज कि अगर हमारे कोड में कोई एरर आता था, वी यूज्ड टू स्पेंड 2-3 आवर्स डिबगिंग इट. तो वी यूज्ड टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कोड कि यार मैंने ये क्यों लिखा, मैंने ये क्यों लिखा. तो उससे क्या होता था कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था मेरे दिमाग का कि यार कोड ऐसे लिखा जाता है. अभी बिकॉज ऑफ द AI टूल्स व्हाट आई एम सीइंग इज कि बच्चे डायरेक्टली जा करके कोड लिखवा लेते हैं, डीबग झट से हो जाता है. इससे आई फील कि वो जो एक बेसिक आपको सेंस होना चाहिए कोडिंग का या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो देयर इज अ चांस कि उस तरीके से डेवलप ना हो. और जब वो थोड़े और इम्पॉर्टेंट स्टेजेस पे पहुंचे अपनी कंपनी में, लेट्स से वो मैनेजर बन गया या CXO लेवल पे पहुंच गया, तो सिंस वो बहुत फंडामेंटल लेवल पे डेवलप नहीं हुआ उसकी पर्सनालिटी में, तो हो सकता है कि इट कैन इम्पैक्ट द कंपनी. सो माई सजेशन वुड बी केयरफुल, डोंट ओवर रिलाई, डोंट डू एवरीथिंग यूजिंग दीज चैटबॉट्स. थोड़ा अपना दिमाग लगाना, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करना इन आइसोलेशन. आई तो सजेस्ट कि इंटरनेट कनेक्शन ऑफ करके कोडिंग करो. राइट, 1 घंटा एकदम डेडिकेटेड, इट्स लाइक कोड मेडिटेशन, कि आप सिर्फ अपने कोड के साथ बात कर रहे हो, नो वन एल्स इज देयर टू डिस्टर्ब यू, एंड दिस इज वेयर लॉजिक विल बिल्ड. वो कनेक्शंस होते हैं ना, वो बेसिकली व्हेन यू कोड आपके दिमाग में वो न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म हो रहे हैं जो आपको बेटर कोडर बना रहे हैं. वो हम न्यूरल कनेक्शंस बनाने का टाइम ही नहीं दे रहे, तो दैट इज द प्रॉब्लम. तो या मतलब दैट वुड बी माय सजेशन. I just want to add one more thing. Like there are sometimes some problems even with the like chatbot also we can't even solve the problem because like I was once trying your lecture on this thing pandas profiling. Right. Yeah, this is like simple 2 lines code, but when you do it like there was like some error, like maybe the Yeah. mismatch or something. I Chatbots have like hallucinate half a an lot. hour more than this to fix. They hallucinate a lot. No, they At least hallucinate. They give us the same correction. it's very risky. Like- It's very risky. Yeah. So you have to be very careful with that. Okay. So moving on to the next question. Yeah. So you are also apart from an educator, you are also an industry expert. So what is the next big thing in the AI that excites you or concerns you the most? And how should a data scientist education should adapt and prepare the students for this shift? Like maybe for an instance, like generative AI ethics or autonomous systems or personalized learning powered by AI. Like how should the education should adapt to this concern? Okay, so 2 parts में आंसर करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट, थिंग्स दैट एक्साइट्स मी, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो जेन एआई तो है ही, मतलब जेन एआई तो नाउ इट्स एस्टैब्लिश्ड. द नेक्स्ट बिग थिंग दैट आई एम seeing is agents, AI agents. Yeah. And I'm pretty sure आपने भी सुना ही होगा. अभी it's the buzzword in the industry. बहुत सारी फंडिंग उठाई जा रही है, बहुत Agentic सारे learning, something like that. you know जो भी leaders हैं, thought leaders, they are talking about this new term agentic AI. And honestly there is a good chance कि agentic AI can be the next big thing because सारे जो puzzle के pieces हैं एकदम सही अभी पड़े हुए हैं, right?
आपके पास सॉफ्टवेयर इस तरीके से डेवलप हो गया है कि आप सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज कर सकते हो, उनके बीच में आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कनेक्टिविटी है. अ डेटाबेस कैन टॉक टू अ बैकएंड सर्विस कैन टॉक टू एन एपीआई. वो सारा सेटअप ऑलरेडी था, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज कि एक मशीन दूसरे मशीन से बात कैसे करेगा, एक दूसरे को समझाएगा कैसे. वो पीस ऑफ पजल आकर के फिट हो रहा है बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई. एलएलएम्स के आने के बाद से क्या हो रहा है कि एलएलएम्स कैन generate natural language, and that natural language can be used to establish a communication between two machines, let's say a database and an API. So agentic AI can be the next big thing. मतलब in each and every aspect of our lives, like we can get a personal assistant, हर किसी के पास होगा. I can literally speak into it और वो मेरा काम करके देगा. मे बी अभी थोड़े से बेसिक यूज केसेस सॉल्व होंगे, बट देर इज अ गुड चांस कि 5-10 सालों के बाद हमारे पर्सनल असिस्टेंट्स होंगे, हम उनका बहुत प्यार से नाम भी रखेंगे, एंड दिन में शायद 2 घंटे हम उससे बात भी करेंगे. देर इज अ गुड चांस, राइट? तो एजेंटिक एआई इज वन ऑफ द थिंग्स. सेकेंड, आई फील एक बहुत बड़ी चीज आएगी, इस पॉइंट पे नहीं है और लोग उतनी बात नहीं कर रहे. इसको हम बुला सकते हैं एक्सप्लेनेबल एआई. सो एक्सप्लेनेबल एआई इज बेसिकली दिस ब्रांच ऑफ एआई जहां पर आप समझने की कोशिश करते हो कि एआई मॉडल्स काम कैसे कर रहे हैं, और अगर उन्होंने कुछ आउटपुट दिया तो क्यों दिया. अभी तक एसेंशियली डीप लर्निंग मॉडल्स आर ब्लैक बॉक्स मॉडल्स. Yes. नोबडी White कैन box. एक्सप्लेन कि एक एलएलएम का आउटपुट एग्जैक्टली ये क्यों आया. मैं कुछ दिन पहले किसी का ट्वीट पढ़ रहा था, वहां पे उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी थी, कि उन्होंने जब प्रॉम्प्ट से पूछा कि 2+2 क्या होगा, तो द आंसर वाज 4. बट जब उन्होंने थोड़ा और प्रॉम्प्ट किया कि तुमने ये आंसर कैसे अचीव किया, तो उसने एक बहुत कॉन्वोल्यूटेड सा लॉजिक दिया, समथिंग लाइक कि पहले मैंने 16 में 2 ऐड किया, उसमें मैंने इतना सब्ट्रैक्ट किया. सो वी डोंट नो कि 2+2 को वो 4 कैसे ला रहा है, बिकॉज उसको मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है, उसको ये पता है कि लोग बात कैसे करते हैं. तो राइट नाउ जो भी एलएलएम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर ब्लैक बॉक्स मॉडल्स. हम उनको बहुत जगहों पे फिट कर रहे हैं. एजेंटिक एआई इज ऑल अबाउट दैट. मैं उसको रेलवे बुकिंग के लिए यूज कर लूंगा, मैं उसको बैंक ट्रांसफर्स के लिए यूज कर लूंगा, बट आई डोंट नो कि वो डिसीजन मेकिंग क्यों कर रहा है. नाउ दिस इज अ बिग रेड फ्लैग. व्हाट इफ कल को कुछ गलत हो जाए, मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये पता करने का कि हुआ क्या. देर इज नो वे टू ऑडिट इफ समथिंग गोज बैड. सो यहाँ पर अब काफी काम होने वाला है, क्योंकि एलएलएम्स तो हमारी लाइफ्स में घुसेंगे ही, तो ऑब्वियसली उनके अराउंड स्क्रूटिनी भी टाइट होगी, और लोग ये सोचने की और समझने की कोशिश करेंगे कि इन ब्लैक बॉक्स मॉडल्स के अंदर चल क्या रहा है. तो इसके अराउंड जो टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी, उनके ऊपर बहुत काम होगा. मोस्ट लाइकली फ्यूचर में बहुत पेपर्स आएंगे, and this will become a hot research topic. So explainable AI is something that I'm really excited about. मैं भी देखना चाहता हूँ कि LLM सोचते कैसे. That would be interesting. Oh. Regarding the concerns, first of my concerns is कि मानो या ना मानो लोग कुछ भी बोले, बट AI के आने के बाद से जॉब रीस्ट्रक्चरिंग होगी. बाय जॉब रीस्ट्रक्चरिंग मेरा ये नहीं मानना है कि लोगों की जॉब चली जाएगी. मेरा ये मानना है कि लोगों की हो सकता है करंट जॉब चली जाए, बट विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम कुछ अच्छा New जॉब jobs. मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, पहले जहां एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कैरी करने में अगर 10 लोग लगते थे, तो अब हो सकता है कि सिर्फ 5 लोगों की जरूरत हो, विच मीन्स 5 लोगों की जॉब जाएगी. बट सिंस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाने आसान हो जाएंगे, तो और कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाएंगी, तो वो 5 लोगों को वहां पे हायरिंग हो जाएगी. तो बेसिकली एक मास रीस्ट्रक्चरिंग होगा. यहाँ का बंदा यहाँ उठ के जाएगा, यहाँ का बंदा यहाँ उठ के जाएगा, और ऑन द होल आई फील कि जॉब्स बढ़ेंगी, और जॉब्स की सैलरीज और जो भी आपके पर्क्स होते हैं वो भी इम्प्रूव करेंगे. क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जब भी आए हैं, हिस्ट्री यही बताती है हमें कि नंबर ऑफ जॉब्स भी बढ़े हैं और क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी बढ़े हैं. तो लेकिन बीच में ये जो पीरियड आएगा जहाँ पे किसी की जॉब चली गई, या फिर दिखता ही होगा आपको न्यूज़ में कि इतने लोगों को फायर कर दिया गया बिकॉज ऑफ एआई इनोवेशन, तो वो जो पीरियड है वो थोड़ा सा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का पीरियड हो सकता है. आप ऑलरेडी देख भी रहोगे, आई डोंट नो आप लोग अभी कॉलेज में हो, बट जो लोग थोड़ा कमाते हैं और शेयर मार्केट में पैसे डालते हैं, दे आर ऑल क्राइंग. it's also related to this also कि there is this mass restructuring going on, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, बट या दिस इज वन ऑफ माई कंसर्न्स कि इसको हमारा करंट इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो कैसे रिसीव करेगा. सेकेंड ऑफ माई कंसर्न इज बिकॉज आई एम अ हार्ड कोर कंट्री लवर.
आई रियली डोंट वांट कि इंडिया एआई की रेस में पीछे हो जाए, जो कि इस पॉइंट पे लग रहा है. क्लियरली यूएस इज लीडिंग द रेस. व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ, चाइना बहुत तेजी से भाग रहा है. एंड मतलब मैं तो जब भी देखता हूँ कोई भी यूएस कंपनी जिन्होंने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, उसमें मुझे 50% उनकी टीम चाइनीज दिखती है. चाइना वालों की 100% लोग चाइनीज है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना तो देयर इज अ गुड चांस कि यूएस को भी सरपास कर जाएगा. बट व्हाट अबाउट इंडिया? हमारी तरफ से अभी तक कोई सॉलिड फाउंडेशन मॉडल्स नहीं आए हैं. हम अभी तक एआई के यूजर्स बन के ज़्यादा एज अ कंट्री यूज हो रहे हैं. मतलब हम शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एआई यूज करते होंगे, बट बनाने वाला पर्सपेक्टिव अभी भी मुझे लगता है कि वी आर लैकिंग. मल्टीपल रीजंस हैं. फंडिंग का रीजन हो सकता है, टैलेंट का रीजन टैलेंट का मे भी नहीं है, बिकॉज हमारे बंदे बाहर जाके दे आर पब्लिशिंग पेपर्स. ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर आशीष वासवानी, ही इज फ्रॉम माई कॉलेज. सो मतलब इट्स क्रेजी. हमारे ही बंदे वहां जाके चीजें कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे. तो मेरा ये कंसर्न है कि इंडिया चाइना और यूएस इंडिया के बीच में उतना भी गैप नहीं हो जाना चाहिए जितना स्पेस के टाइम पे हो गया था. स्पेस टेक के टाइम पे रशिया यूएस वो माइल्स हेड. उन्होंने 60s में मिशंस कंडक्ट कर दिए, हम अब कर रहे हैं. सेम विद सॉफ्टवेयर भी यूएस बहुत आगे निकल गया. हम अभी भी ट्राई कर रहे हैं. अभी भी हमारे तरफ से कोई ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो पूरी दुनिया यूज करती हो. सो आई फील कि वहाँ पे मेरा कंसर्न है कि बहुत पीछे रह जाएगा तो it's not good. So these are two of my concerns. And honestly, like, it's just not, in my point of view, it's just not India. Whenever, as you said, if we see back history, whenever these new technology advancements comes, if there's the hierarchy between countries, if like we took an interview of a startup in India, AI in India, and when we seeing the problems they are facing, be it the computation power, the fundings, and when we see any startup, I was seeing an statistic analysis on the startups which are happening in US. It's so easy for them to get funding in computation power. So even India, but also the other countries which do not have the resources, and beat the computation resources, when we are talking up now to you educator, the also the education resources, the knowledge resources. So this is going to create a huge gap which is already there. But as AI is a new currency, it's a new gold, and I think that's a very major concern. Very well. Yeah, first of all, there is also this problem of connectedness ना. मतलब हम AI में पीछे हो रहे हैं, उसका रीजन ये है कि हम थोड़ा रेस में पहले से भी पीछे ही दौड़ रहे हैं. Yes. राइट मतलब अभी आपको AI मॉडल्स ट्रेन करने के लिए GPUs चाहिए. Yes. प्रोग्रामेबल GPUs जो क्यूडा प्रोग्राम कर सकते हैं, वो NVIDIA बनाती है. Yes. अब NVIDIA के ऊपर ये सैंक्शन लगा हुआ है कि आप कुछ 50,000 से ज़्यादा GPUs आप एक साल में ले ही नहीं सकते NVIDIA से. राइट. अभी मैं अगर चाहूँगा मेरे को अग्रेसिवली डेवलप करने हैं चीज़ों को, तो मेरे ऊपर ये सैंक्शन लगा हुआ है, मैं नहीं कर सकता. क्या मैं खुद से अब अपने GPUs बना सकता हूँ? अब उसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. मेरे को फिर अब इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ वो पार्ट करना पड़ेगा जो चाइना में भी कर सकता है, बिकॉज उन्होंने वो जर्नी कवर कर ली है. बट वी आर लैगिंग देयर ऑल्सो. तो यही बात है कि AI में हम उस लेवल पे नहीं है, बिकॉज हम पहले भी थोड़ा रेस में पीछे चल रहे हैं. तो यहीं पे वो थोड़ा सा कोई स्पेशल कुछ मेरिकल हो, कोई कंपनी ऐसी निकल के आए, कोई इंडिविजुअल ऐसा निकल के आए. इट्स लाइक सचिन इन 90s जब इंडिया वाज नॉट a great team, but one individual came and he changed the cricketing landscape of the country. So something like that might happen in the future. में आप लोगों में से कोई लोग ऐसा निकल के करो. मतलब after all, अब hopes आप लोगों से ही है. And what about data? Like, you didn't point about data. Like, I remember we are working on a research project. Like, it's an agriculture research project. And when we were taking about data set, we do not have any agriculture data set. India, country where agriculture is the main part. Still, we do not have a very major agriculture data set. If we're talking about healthcare data sets, we don't have data. India is one of the most consuming AI. Still, we do not have data sets about healthcare data sets. We don't have data. India is one of the most consuming AI. Still, we do not have data sets. Again, because we are lagging. Yeah. We did not see this. कि future में data will be so important. So important. Yes. In comparison, if you compare to, let's say, Google, Facebook, they were miles ahead. 2005 में they saw कि we are generating so much data, it should mean something. Yes. And that's why they never charged for their products. Right? Facebook, such a good service. Google, brilliant service. मैं महीने के 100 रुपए दे दूंगा. उन्होंने कभी मेरे को चार्ज नहीं किया because they wanted to
get Yes. my data, right? वो famous line है जो if you're not paying for the product, you are Then the you want the product. product over So it. they took our data, and right now they are sitting on a gold mine, Yep. right? Great. Reddit, जितनी भी बड़ी social media companies है, they are sitting on gold mine. अब उन्हीं का डेटा ले लेके ये मॉडल्स ट्रेन हो रहे हैं. GitHub पूरा का पूरा ये जो AI कोडिंग का पूरा Coding कॉन्सेप्ट है, mix-ups. गिटहब का बहुत मेजर रोल है. तो वही मैं एआई में पीछे होने की वजह है कि हम पहले भी थोड़ा लैगिंग गेम खेल रहे हैं, और वो अब हमें दिखाई दे रहा है कि कई तरीकों से इट्स प्रॉब्लमैटिक. Very well Yeah. put. Okay, so moving on. अभी like we just a small request, like अभी आपने टीचर वाला hat पहन के आप ज्यादा जवाब दिया था. Now we want to like know the answers in terms of a data science perspective. So next अगला क्वेश्चन उसके हिसाब से ही होगा. उसमें पहला क्वेश्चन, what is the first question? Like what is the biggest challenge you faced in your career as a data scientist, and what did you learn from it? And also, if possible, like can you share any of your achievements or any regrets? Regrets that you make, which I think I should have done this way to make it all better. कुछ करेंगा. Like, can you share any of this thing? Okay, so see, first of all, I have never worked as a data scientist in industry. So for me, data science is all about learning and teaching. तो मुझे उतने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कभी मिले नहीं. हम एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो बहुत ऐसा डिफिकल्टी, स्केलेबिलिटी, ये सब तरह की चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. व्हाट आई कैन टेल यू इंस्टेड इज कि मेरा जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है, जहाँ पे मैंने अलग अलग एडटेक कंपनीज फाउंड की, उससे आई कैन टेल यू कि सबसे बड़ा मिस्टेक और लर्निंग्स क्या रही. दैट आई कैन टेल यू इफ इट्स Yeah, you can share. No problem. सो आई since I told you मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ, and the first 7 years I used to teach offline, मतलब classroom setting में. So we had our office, we had our classrooms, हम students को बुला के वहाँ पे पढ़ाते थे, and this was working fine. We used to operate in Kolkata. I lived there for like 7 years, and we were one of the top education providers there in offline setting. Then COVID happened, and our entire business was gone within a span of 1 year, because you need to pay for the office rent, classroom rent, and people will not come to your classes. So my business was gone, and that was the biggest mistake I feel. कि मैंने पहले से ये क्यों नहीं सोचा कि ऑफलाइन पढ़ाने से बहुत अच्छा है ऑनलाइन पढ़ाना. Alternative of like, Because it is first of all secure from such scenarios. कोविड आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग पढ़ाई तो करेंगे ही, और ऑनलाइन पढ़ाई करना बहुत अच्छा है. सेकंड, कॉस्ट कम रहता है. आई डोंट हैव टू इवन टेक एन ऑफिस. आई कैन टीच फ्रॉम माई होम, विच आई डू. मतलब करेंटली आई टेक ऑल माई क्लासेस फ्रॉम माई होम ओनली. थर्ड, इट्स हाईली स्केलेबल. जहाँ पे आप एक क्लासरूम में 60 बच्चे बिठा सकते हो, और बच्चे आ गए तो फिर आपको दोबारा वो सेम क्लास लेनी होगी. इट्स मच ईजियर कि आप एक यूट्यूब वीडियो डाल दो जो लाखों लोग देख सकते हैं. सो ये मैंने परसीव नहीं किया, ये मैं समझ नहीं पाया, और कोविड हैपेंड, लाइफ में भी सेटबैक आया, एंड आई हैड टू स्ट्रगल अराउंड दिस entire period. And when I realized कि a much better way to do things would be online, then उसके बाद YouTube से चीज़ें स्टार्ट की, और अभी तक भी वो लर्निंग आई एम ट्राइंग टू यूज़ कि ऑनलाइन ही करना है. बहुत सारे ऑफर्स आते हैं अभी कि लेट्स डू ऑफलाइन, आई एम लाइक नहीं, अब तो ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू गो. तो दिस हैज़ बीन माई बेस्ट लर्निंग कि डू थिंग्स विच आर स्केलेबल, राइट. आपका इनपुट x लग रहा है तो आउटपुट 10x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है, राइट. जैसे डॉक्टर्स की बात करो, बहुत ही रेप्यूटेड प्रोफेशन है, बट आप हार्डली देखोगे कि डॉक्टर्स सुपर रिच हैं, लाइक 100 करोड़ का नेटवर्थ है. क्यों? बिकॉज उनकी अर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितने घंटे वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, राइट. आइडियली स्केलेबल मीन्स कि आप अगर सो भी रहे हो तो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस आपके लिए पैसे जनरेट कर रहा है. तो आई फील कि आपको इस तरीके से थोड़ा सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो लीनियरली अटैच्ड है मेरे मेहनत से, या फिर मेरे एब्सेंस में भी वो प्रोडक्ट
revenue generate कर सकता है. So this has been the biggest learning, and going forward, whenever I take a business decision, I try to make sure कि I do things in scalable way. Okay. 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 So for going to the next question, अभी recent trend पे क्या था, like you are also mentioning DeepSeek, like DeepSeek अभी trend में गई. With DeepSeek, like people started proving that we can do many things with less. Like less is more, like एक scenario है था, because initially you said like you need so much of hardware and so much of data and everything, but after DeepSeek, like these all things have changed. Do you think is this really possible in the domain of AI and ML, in terms of maybe like your resources like computational power, or maybe the complexity of the model, or maybe with the data, like can we train any better model with the less data? So what's your take on this thing? So सिंस मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, राइट फ्रॉम जब ट्रांसफॉर्मर्स का पेपर आया था, सिंस देन आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस पैटर्न कि बिगर इज बेटर. ये पैटर्न रहा है डीप लर्निंग में. मतलब इवन यू कैन सी अ ग्राफ कि आप कितने पैरामीटर्स लगाते हो अपने मॉडल में और परफॉर्मेंस कितना आता है. दैट इज लाइक अ लीनियर ग्राफ. तो वहां पे रिसर्चर्स को ये लगने लगा कि डीप लर्निंग में बेटर मॉडल्स बनाने का एक ही तरीका है, बड़े मॉडल्स बनाओ. बाय बड़े आई मीन ज्यादा पैरामीटर्स डालो, ज्यादा डेटा पे ट्रेन करो, ज्यादा बढ़िया हार्डवेयर पे ट्रेन करो. अब ये अप्रोच काम करता है, ये आपको दिखाई देगा. जीपीटी का इवोल्यूशन देखो, जीपीटी 1 से लेके जीपीटी 4 तक. यू वुड सी कि कॉन्स्टेंटली लोगों ने पैरामीटर्स बढ़ाए. जीपीटी 1-2 में मिलियंस पैरामीटर्स थे, 4 में आते आते वो बिलियंस क्रॉस कर गया, लाइक 200 बिलियन से ज्यादा है शायद. तो अभी तक इट्स वर्किंग, बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम्स भी हैं. बिगर इज बेटर में प्रॉब्लम्स भी हैं. पहला, कॉस्ट. क्रेजी पैसा लगता है. मतलब कोई छोटी मोटी कंपनी या फिर इवन छोटी मोटी कंट्रीज तो सोच नहीं सकती हैं कि वो खुद का फाउंडेशन मॉडल ट्रेन करे. Yes. आज भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है एक फाउंडेशन मॉडल ट्रेन करना, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इन्वॉल्व. आपको बहुत जीपीयूज चाहिए, बहुत ट्रेनिंग डेटा चाहिए, आपको महीनों की ट्रेनिंग लगेगी, तब आप एक फाउंडेशन मॉडल बना सकते हो. तो कॉस्ट बहुत बड़ा सेटबैक है. सेकेंड प्रॉब्लम इज इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. आप जब इस स्केल का मॉडल ट्रेन करते हो ना, तो इसका नेचर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. CO2 एमिशन अगर आप देखो, तो मुझे शायद, मैंने जितना पढ़ा है कि 500,000 टन्स ऑफ CO2 एमिट किया कोई पर्टिकुलर मॉडल ट्रेन करने में. कहीं दूसरी जगह मैंने ये पढ़ा कि 2030 तक पूरी दुनिया में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसका 30% इलेक्ट्रिसिटी AI मॉडल्स को ट्रेन करने में जाएगा. नाउ इमेजिन द इम्पैक्ट. अभी आपको फ्यूचर जनरेशंस के बारे में भी सोचना है, राइट? यू डोंट वांट कि क्लाइमेट चेंज हो जाए, सुनामीज आए, जस्ट बिकॉज आप AI मॉडल्स ट्रेन करना चाहते हो, राइट? तो दैट वाज द सेकंड कंसर्न. एंड द थर्ड कंसर्न वाज, या मैंने लिखा है कि एज डिवाइसेस पे सूटेबल नहीं है. मतलब आप इतने बड़े मॉडल्स को अपने फोन पे रख के नहीं चला सकते, या फिर एक आर्डिनो बोर्ड पे रख के नहीं चला सकते, या किसी रोबोट में डाल के नहीं चला सकते. ये मॉडल्स बहुत बड़े सर्वर्स पे एग्जिस्ट करेंगे और वहां से फिर इंटरनेट से बात करेंगे. प्राइवेसी ऑफ द डेटा इज आउट ऑफ द विंडो. तो ये 2-3 बहुत बड़े प्रॉब्लम्स थे. एंड दैट्स व्हेन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि सिर्फ बड़े मॉडल्स बनाना कैन नॉट बी अ सोल्यूशन. व्हाट इफ हम किसी तरीके से इस फिलॉसफी को चेंज करें और छोटे बट यूजफुल मॉडल्स बनाएं. तो यहाँ पे अब काम स्टार्ट हुआ है, मल्टीपल एस्पेक्ट्स में काम स्टार्ट हुआ है. सबसे पहले आपके डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स आने लग गए. मतलब चैट जीपीटी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, बट देयर आर सिनेरियोज जहाँ पे मुझे हर तरह की बात करने वाला बंदा नहीं चाहिए, चैटबॉट नहीं चाहिए, स्पेसिफिक बात करने वाला चैटबॉट चाहिए. लेट्स से आई एम इनटू लीगल कंसल्टिंग. तो मुझे क्या मतलब है चैटबॉट को कितना पता है, मुझे बस चाहिए कि वो जितने लीगल केस स्टडीज है वो उसको पता हो और उसके बारे में मुझे आंसर कर दे. या फिर मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जो सारे मेडिकल केसेस की हिस्ट्री मेंटेन करके मुझसे बात कर पाए. तो दीज आर स्मॉलर मॉडल्स बिकॉज ये सिर्फ एक एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? सेकेंड, आपके कुछ टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि क्वांटाइजेशन आपने सुना होगा, 4-bit क्वांटाइज मॉडल, 8-bit क्वांटाइज मॉडल. तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने पैरामीटर्स का प्रिसिजन घटा देते हो. उतना इंफॉर्मेशन वो कंटेन नहीं कर रहा है, बट सिंस आपने प्रिसिजन घटा दिया तो साइज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है. अब आप उसी मॉडल को अपने एज डिवाइसेस पे भी डाल सकते हो. एंड दैट इज व्हाट यू आर सीइंग. अब बहुत सारे जो नए लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं उस पे ऑन डिवाइस AI है. इंटरनेट नहीं भी है तो आप बात कर सकते हो बिकॉज ऑफ दीज क्वांटाइज मॉडल्स. इसके अलावा आपका डेटा सेट पे भी बहुत काम चल रहा है. रादर देन ट्रेनिंग ऑन द एंटायर इंटरनेट, नाउ यू आर जनरेटिंग सिंथेटिक डेटा.
जो बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से बना हुआ है, और मॉडल को आप थोड़ा सा ही डेटा दो लेकिन वो सीखेगा उतना ही. तो अब काम हो रहा है इसके ऊपर, बिकॉज पीपल आर रियलाइजिंग कि डाउनसाइड है बड़े मॉडल्स बनाने में. डीप सीक इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. उन्होंने बहुत कम रिसोर्सेज में सेम लेवल का मॉडल बना के दिखा दिया, एंड इसके आने की वजह से नाउ पीपल विल बी मोर इंस्पायर्ड टू बिल्ड सच मॉडल्स. सो या, लेस इज मोर कैन बी अ वे टू गो. more and it's a need. As you said, it's a need. Yeah, it is for a need, Yeah, right? it's a need. It is a need. Like you already covered like emission, ये pollution. मतलब no one knows like see generally suppose if you're clicking the button or someone Exactly. who's doing हाँ, they but won't वहाँ पे consider how much वहाँ पे CO2 1 लीटर पानी खत्म हो गया, मैंने एक क्वेरी भेजा, तो Because वो मैं like, नहीं सोच रहा हूँ ना. people who develop they have these all the resources. They don't know people somewhere in Exactly. Africa there is a kid who Exactly. doesn't have water sufficient like that. ये नहीं पता है maximum. एग्जैक्टली, क्योंकि वो थोड़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, मतलब कि फंडिंग उठाना है तो ये नहीं बोलेंगे ना कि इससे इतना कंसर्न्स भी है. I mean, so next thing, आपने बताया most of the time you are like entrepreneur, like educational entrepreneur, edtech में है. So आपकी knowledge and what you from your what are the evergreen skills like data science में basic skills मतलब what should they have and which are immune to automation like अभी coding कोई भी बना सकता है but these skills like ये automation या chatbot redbit नहीं करेगा. So, and how can learners cultivate these skills, and what role should an educator should emphasize during this for these tools? तो मोस्टली आंसर कर दिया इसके बारे में. वही है जो आपके जो कुछ कोर फंडामेंटल स्किल्स है ना, जैसे कि अगर आप एआई डेटा साइंस की बात कर रहे हो, तो if there is a guy who has got solid grasp on statistics, probability, linear algebra, और वो इन मैथमेटिकल टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, वैसा बंदा कभी रिप्लेस नहीं होगा एआई ऑटोमेशन आने के बाद भी, बिकॉज वो जिस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, आई डोंट थिंक करंट एआई कैन सॉल्व with such mathematical grace. Second is someone who has got great problem solving skills and critical thinking. मतलब एक प्रॉब्लम को दिया गया, उसको प्लान करना, ब्रेक डाउन करना स्टेप्स में, फिर एग्जीक्यूट करना. थोड़ा एटीट्यूड भी है वैसा कि जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है मैं ठहरूंगा नहीं. क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेशर सिनारियोज, थोड़ा कंजूसी में काम करना है, जुगाड़ में काम करना है, तो थोड़ा इस तरह का जो एटीट्यूड होता है ना, जो इंडियन बॉलीवुड हीरोज में दिखाया जाता है कि सब कुछ कर सकता है, उस तरह का पर्सनालिटी ऑफ उस तरह का बंदा भी आई थिंक कैन इजिली सर्वाइव एआई ऑटोमेशन. एंड थर्ड वुड बी समवन हु हैज गॉट ग्रेट डोमेन नॉलेज. किसी ने अगर टाइम स्पेंड किया है इंडस्ट्री में किसी पर्टिकुलर डोमेन में, मान लो बैंकिंग के डोमेन में उसने 5-10 साल काम कर लिया, तो उसको बैंकिंग का इन एंड आउट पता है, तो वो एनी डे किसी एआई से बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा इस प्रोजेक्ट में, राइट? तो डोमेन नॉलेज का सब्स्टिट्यूट अभी नहीं है एआई. तो डोमेन नॉलेज जितना आप गेन कर सको किसी एक डोमेन में, दैट इज वाई मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जॉब स्विचेस करो तो कंपनी चेंज करो, डोमेन चेंज मत करो. इफ यू आर वर्किंग इन हेल्थ केयर, कंसिस्टेंटली वर्क इन हेल्थ केयर, बिकॉज 5-10 साल के बाद आपको आपके ये एआई और डेटा साइंस स्किल्स के ज़्यादा पैसे मिलेंगे आपको आपके डोमेन नॉलेज के लिए, बिकॉज यू हैव गॉट सो मच डोमेन नॉलेज जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगा, तो वो बहुत क्रिटिकल है. तो इन समरी फंडामेंटल जिसका सॉर्टेड है, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है, और डोमेन नॉलेज है. अगर ये कॉम्बिनेशन का कोई बंदा है, वो मेरे को लगता है कि कितने भी एक्सट्रीम एआई ऑटोमेशन में सर्वाइव करेगा, अच्छा करेगा. So the next question, like you have answered it in many parts, but like this is the problem, as you said, that you are also facing. You when you make videos, you want to make them totally with theory and then full implementation long videos. But then people start preferring short videos, maybe like 15 minutes, learn in 15 minutes based in class or something. When Right. it's a topic of 2 hours. So there is but there is a temptation, I'm speaking on the behalf of students also, because they have a lot Right. of things and they say, why not 15 minutes? If I have an option of 2 hours and 15 minutes, why not? So if not answered, because as you have answered, like there are some benefits of this and that problem solving skills, but like maybe if you can answer on the behalf of like CampusX, what you are providing, what this 2-hour video will provide, and what 15 minutes video will provide, maybe in the long run, that students should stick to the 2-hour video. Like they should focus on more on building more expertise, durable expertise, rather than this shortcut. So maybe more you can answer more on this, that resisting the temptation.
सो देखो हुआ क्या है ना, सिंस मैंने तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को अपनी आंखों के सामने ग्रो करते हुए देखा है. मैं जब कॉलेज में था, वी यूज टू हैव एनपीटेल के लेक्चर्स, Yeah. जो Yes. कि 1-1.5 घंटे का अभी भी एग्जिस्ट करते हैं. Yes. और हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता था. देयर वर नो अदर यूट्यूब चैनल्स जो 15 मिनट में हमको समझाएगा. तो हम एक्चुअली, इंटरनेट स्पीड स्लो होता था, हम डाउनलोड करके फिर तसल्ली से देखते थे. तो वो कल्चर से मैं आया. फिर मैंने देखा कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स आने लग गए जो थोड़ा और एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा और रेलेवेंट एग्जांपल देते हैं, थोड़ा लैंग्वेज अच्छा रहता है, रिलेटेबल रहता है. तो इस तरह का एक शिफ्ट आ गया. फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे उसमें भी अब ये फाइट होने लग गई कि कौन कितना छोटा ट्यूटोरियल बनाता है. बिकॉज अपेरेंटली यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स सच वीडियोस जहाँ पे थोड़ा ड्यूरेशन कम हो. और वो इसलिए है बिकॉज लोगों के पास पेशेंस कम है और लोग छोटा वीडियो देखना चाहते हैं. राइट. तो ये बेसिकली एक साइकिल है. यूट्यूब छोटे वीडियोस प्रेफर करता है बिकॉज लोग छोटे वीडियोस देखना चाहते हैं, इसलिए अब यूट्यूब बड़े वीडियोस को पेनलाइज करता है और छोटे वीडियोस दिखाता है. अब ये पेनलाइज करने लग गए तो हमारे जैसे क्रिएटर्स पे प्रेशर आ गया कि भाई अब छोटे ही बनाएंगे, नहीं तो बड़े बनाने पे तो रिकमेंडेशन नहीं होगा. तो मेरा पूरा ये साइकिल बन गया. अब इस पूरे साइकिल से आउटकम क्या निकला कि एक कल्चर आ गया है कि मुझे कोई एक टॉपिक पढ़ना है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वीडियो जो देख के मैं समझ जाऊंगा, या मेरे को आज एग्जाम की पढ़ाई करनी है, जल्दी से देख के मुझे समझना है. अब ऑनेस्टली आप एक एग्जाम का क्वेश्चन आंसर कर सकते हो 15 मिनट का वीडियो देख के, बट जस्ट आस्क योरसेल्फ, डू यू रियली थिंक आप एक चैट जीपीटी लेवल का सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो 15-15 मिनट के ट्यूटोरियल देख के? वो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो क्लियर झूठ है. और अगर आपको कोई यूट्यूब पे ये बोल रहा है कि मेरे 15 मिनट वीडियो में आप एंड टू एंड ये टॉपिक सीख जाओगे, दैट इज अ लाई. ये प्रोडक्ट्स जो बने हैं ये लोगों का सालों का रिसर्च का आउटकम है. वो आपके 15 मिनट्स में, मतलब आप कितने स्मार्ट हो गए कि आप 15 मिनट्स में वो सारे कनेक्शंस ड्रॉ कर लोगे जो किसी को 10,000 घंटे में उसने किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स को खुद होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल यू गाइज आर लाइक यंग, मतलब 18, 20, 25, 30 एज के हो. तो इतना तो अब समझ में आ गया है कि एग्जाम निकालने वाली पढ़ाई अलग है और सच में काबिल बनने वाली पढ़ाई अलग है. तो एक सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और सेकंड, मेरे को लगता है थोड़ा हम क्रिएटर्स की साइड से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ पैसे के पीछे जाना है या फिर थोड़ा अपने प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करना है. जैसे मेरा मन नहीं मानता कि मैं 15 मिनट्स में कोई टॉपिक पढ़ा दूँ. वो अगर मैं करूँगा तो मेरे को शायद रात में नींद नहीं आएगी. तो मैं 1 घंटा ले लेता हूँ और मेरे को पता है कि मेरे वीडियोस में इमीडिएटली मुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, ना मेरा वीडियो कभी यूट्यूब के होम पेज पे लिस्ट करेगा, ना मेरा कोई वीडियो कभी वायरल होगा. इनमें से कोई भी चीजें आज तक नहीं हुई. बट ओवर टाइम व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि धीरे धीरे यूट्यूब सर्च पे मेरे रिजल्ट्स ऊपर आते हैं. लाइक इफ आई सर्च अ टॉपिक, लेट्स से scikit-learn pipelines, it is one topic in machine learning. Yes. अब आप यूट्यूब पे सर्च करो इनकॉग्निटो में, विच मीन्स आपके बायसेस वहां पे नहीं आ रहे, देयर इज अ गुड चांस कि कैंपस एक्स का वीडियो ऊपर आएगा. बिकॉज ओवर टाइम जो सीरियस लर्नर्स थे उन लोगों ने उस वीडियो को एंड टू एंड देखा, उसके मेट्रिक्स इंप्रूव किए, यूट्यूब को बताया कि ये वीडियो अच्छा है, इसको ऊपर लेके जाओ. तो थोड़ा मेरे को लगता है क्रिएटर की साइड से पेशेंस की जरूरत है कि आपको अपना रिवॉर्ड आज चाहिए या 5 साल बाद चाहिए. बस यही है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड. तो बच्चों की साइड से देयर शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं 15 मिनट में एक्सपर्ट नहीं बन सकता. क्रिएटर की साइड से थोड़ा सा कि यार मैं आज $5 कमाने के बदले 5 साल बाद $50 कमाऊं. Okay. ये रियलाइजेशन. तो मेरे को लगता है ये बैलेंस अगर ड्रॉ होने लग जाए तो फिर थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा, वो क्विक फिक्स कल्चर थोड़ा बदल जाएगा. So like moving to our last question, but so now today's world is fully connected world. There are so many choices, be it on courses, certification, trends. Everyone want to put one certificate on LinkedIn. I have done this, I have done that, and because there is a pressure to keep up with the expectations from industry or from the people around you. But then at the end it leads to burnout. There is a confusion and there is so much scattered focus. So many things have been covered all over in the interview, but like more of in term of a more roadmap, if you can tell a roadmap like from a student, like he will be student but then he will be also doing a job. So how can they have a roadmap in this particular field, data science, to build an expertise but also to be flexible, because we know this thing and that it is going to AI is going to evolve. So how to keep us flexible enough to adapt to this AI evolution? So what's that one golden advice you can give
road map? आपको एग्जैक्ट रोड मैप बताता हूँ जो मैं अपने पेड कोर्सेज के फर्स्ट क्लास में बताता हूँ. सो सेम कॉपी पेस्ट है. सो स्टेप 1 इज एक्चुअली स्टेप 0 इज कि पेशेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा. आप 30 डेज में डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते, आप 90 डेज में भी नहीं बन सकते, आप 6 मंथ्स में भी नहीं बन सकते. इट विल टेक अराउंड 1000 आवर्स की पढ़ाई, रफली इक्विवेलेंट टू 1 ईयर. एंड इफ यू वांट टू बिकम एन एक्सपर्ट देन 10,000 आवर्स. फ्रेशर लेवल जॉब लेने के लिए 1000 आवर्स और मे बी 50 LPA का जॉब लेने के लिए 10,000 आवर्स. ये आपको सबसे पहले समझना है. इफ यू डोंट हैव द पेशेंस टू स्पेंड दिस मच टाइम, आप अभी छोड़ दो, आई विल रिफंड योर पैसा. मैं एकदम ब्लंटली ये बात बोलता हूँ. अगर पेशेंस इन प्लेस है तो फॉलो द फॉलोइंग रोड मैप. सो इट स्टार्ट्स विथ स्टेप 1, आइडेंटिफाइंग द जॉब रोल दैट सूट्स यू. डेटा साइंस में बहुत सारे जॉब रोल्स हैं. डेटा एनालिस्ट भी है, डेटा साइंटिस्ट भी है, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी है, अभी जेन AI इंजीनियर भी आ गया, और डेटा इंजीनियर बोल के एक और प्रोफाइल है. अभी प्रॉब्लम क्या है कि मैं जो देखता हूँ स्टूडेंट्स में, दे ट्राई टू अप्रोच ऑल द जॉब प्रोफाइल साइमल्टेनियसली. मतलब मैं डेटा इंजीनियर वाली जॉब के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँ, डेटा एनालिस्ट के लिए भी हो जाऊँ, डेटा साइंटिस्ट के लिए भी हो जाऊँ. अब इसमें क्या होता है कि स्कैटर हो जाता है आपका फोकस, और आप बेस्ट ऑफ नथिंग रहते हो. गुड एट ऑल, बेस्ट एट नथिंग. दिस इज अ प्रॉब्लम. आई फील एकदम शुरू में आप अपनी जर्नी के इन सारे जॉब रोल्स के बारे में पढ़ो. क्या करते हैं ये लोग कंपनी में, देखो, समझो. इफ पॉसिबल लिंक्डइन पे अप्रोच करो, लोगों से बात करो, समझ लो कि जॉब प्रोफाइल में होता क्या है. अब अपने स्किल्स को इवैल्यूएट करो कि मैं किसमें अच्छा हूँ, और फिर एक ओवरलैप देखो. जिस जॉब प्रोफाइल में सबसे ज्यादा ओवरलैप है वो आपकी जॉब प्रोफाइल है. नाउ यू हैव टू टारगेट दैट. उसके बाद क्या है, यू हैव टू बिल्ड अ रोड मैप कि मुझे 6 मंथ्स या 1 ईयर में उस पूरी चीज़ की पढ़ाई करनी है. अब ये ट्रिकी पार्ट है बिकॉज आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता रोड मैप क्या होगा. गुड पार्ट इज कि अब आपके पास रिसोर्सेज है. सो यू कैन गो एंड आस्क ChatGPT. यू कैन गो, पूरा का पूरा इंटरनेट अवेलेबल है. यू कैन अप्रोच समवन जो ऑलरेडी ये कर चुका है, आपका सीनियर, सम कलीग, समवन. यू कैन बेसिकली ट्रायल एंड एरर से, मल्टीपल सोर्सेज से फिगर आउट करो व्हाट इज दैट रोड मैप दैट यू वांट टू फॉलो. सेकेंड, कसम खाओ कि यू विल स्टिक टू इट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीने बाद नहीं फॉलो हुआ, सेकेंड रोड मैप नहीं फॉलो हुआ, थर्ड रोड मैप, फिर आप सर्कल्स में घूमोगे. एक रोड मैप बना लिया, कितना ही खराब रोड मैप होगा, अगर आपने 1 महीना रिसर्च करके बनाया, 90% अच्छा होगा, कोई बात नहीं, इट्स डिसेंट. उस रोड मैप पे स्टिक करना है. इफ पॉसिबल कोई कोर्स कर लो जो आपको लगता है कि रिव्यू अच्छा है, फीडबैक अच्छा है, कर लो कोर्स, और स्टिक करो, चीज़ें बनाओ. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट योर लर्निंग. डेटा साइंस में बहुत कुछ पढ़ना है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है स्टूडेंट्स में, नया पढ़ते जा रहे हैं, पिछला वाला भूलते जा रहे हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी लर्निंग्स को डॉक्यूमेंट करो. बेसिकली जो भी पढ़ा है पढ़ाने लग जाओ. कहाँ पढ़ाओगे, कहीं भी. आपका कोई फ्रेंड पढ़ना चाहता है उसको पढ़ा दो, कोई नहीं मिल रहा है, ब्लॉग्स लिख डालो, यूट्यूब वीडियोस बना डालो. बिकॉज मैंने पर्सनली नोटिस किया, अगर आप कुछ पढ़ा देते हो ना, तो वो स्टिक कर जाता है, राइट. वो किसी को बताना, मतलब आपको शायद याद नहीं होगा आपको 8th क्लास का अपना कोई टॉपिक, लेकिन आपको याद होगा जब आपने 8th क्लास में किसी को चीटिंग कराई होगी, जहाँ पे आपने उसको एग्जाम हॉल में जल्दी से बताया कि दिस इज द आंसर. वो स्टिक कर जाता है बिकॉज वो मसल मेमोरी उस तरीके से ऑपरेट करती है. तो डॉक्यूमेंट योर लर्निंग एट एवरी स्टेप. एंड लास्टली, डू माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स. पाइथन सीख लिया, पाइथन पे प्रोजेक्ट करो. पैंडा सीख लिया, पैंडास पे प्रोजेक्ट करो. और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीख लिए, डू सम प्रोजेक्ट्स. तो ये अगर आप रोड मैप रफली भी फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी आप विद इन 1 ईयर फ्रेशर लेवल जॉब्स क्रैक कर सकते हो. दैट इज माई ओपिनियन ऑन दिस. Okay, okay. So, like, I'm sure, like, you must be hearing a lot of praises. So I don't need to do a lot of. Even if you open just comment section of one of your video, you will see how much impact you're doing in the. Yeah, I'm lives of super glad students. कि स्टूडेंट्स को पसंद आता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स लाइक पेट्रोल फॉर मी. कि किसी दिन काम करने का मन नहीं भी किया तो अपना वीडियो देख के आई गेट मोटिवेटेड कि नहीं यार, लेट्स वर्क. It's So, like yeah. it's like data is the fuel for model. It is fuel for you. Yeah, it's Yeah. the same for me, right? And but I must say that the principles you had before coming into this teaching industry, you are following them, and it's really impacting. It's really going well. With some hurdles
here and there, but surely it is impacting very well. And on the behalf Thank of our full batch, we really follow you. It's like Acha, you guys follow me. Like That's most great. of everyone follows your videos, sir. Like That's like so great. serious भी Fun बोलते हैं, fact, like, fun fact. When COVID came and my life got impacted, so I was thinking of quitting my business, and the first thing that I thought of doing was PGDBA, because मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग आता है, अच्छा रेपुटेड है, मे बी आई शुड डू दिस. बट फिर मुझे पता चला कि इसमें भी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, तो आई वाज लाइक छोड़ो फिर, लेट्स ट्राई यूट्यूब. you must have cracked, and you would have been very nice alumni No, for I'm us. not but really sure about, because entrance exams in India are different beast. यार Yeah, आपको sure, इतना sure. competition crack करना पड़ता है. I don't think nah, limited is. it's very difficult. It's very difficult. मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें बहुत easy हैं इंडिया में. Not cracking competitive exams. So kudos to you guys कि आप लोगों ने अच्छे level पे चीजें की. Fine. Congrats. So, like, thank you for again for taking the time to share your journey, to share your suggestions, everything. So here's what next. Like, we will transcribe the interview and we will share the draft with you for review. Our magazine is planned for publishing around July, like it's tentatively, but around that we will do share the draft around early mid-May. And if you would like to add, modify, or anything clarify in the draft, we will do that, like, because we want to ensure that whatever you want to envision, then how you want to Yeah, story your sure. story. I trust you guys on this, because आपने जब मेरे को क्वेश्चनर भेजा था ना, तभी मेरे को लगा कि यार चलो थोड़े दिमाग वाले लोग पूछ रहे हैं और ये पूरी चीज आई फेल्ट कि अच्छे से ही कंडक्ट होगी. सो थैंक्स यार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स फॉर हैविंग मी. इन क्वेश्चंस को आंसर करने के प्रोसेस में थोड़ा मैंने भी खुद को और डिस्कवर किया. होता क्या है कि आप जब अपना डे टू डे लाइफ Yes. जीने लगते हो, वीडियो बनाना है, नेक्स्ट वीडियो बनाना है, तो कभी कभी आप भी अपने कोर मोटिवेशंस और अपने जो आपके sure. गोल्स हैं उनसे थोड़ा सा डेली का वो रिमाइंडर नहीं रहता है. तो जब मैंने ये सारे क्वेश्चंस आंसर किए अपने दिमाग में, मैं थोड़ा और खुद के क्लोज आया. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, Sure. एंड आई विश यू ऑल द लक. आप you, लोग thank अभी स्टूडेंट हो और गोइंग फॉरवर्ड आई विश आप लोग अच्छी कंपनीज में जाओ और बहुत अच्छा Yes. करियर हो आपका. Yes, so that's all. Really, very thank you. A lot of thanks and best wishes to you. या सेम टू यू. Thank you. हाँ, thanks sir. Interview में बहुत Bye. अच्छा है. Yeah. Thanks.